کہ محمود آباد روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ سالوں سے تباہ سڑک پر حادثات معمول بن چکے ہیں، جہاں ٹریفک کی روانی میں متاثر رہتی ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ اکراوان سے۔ اس وقت میں محمود آباد پل کے نیچے موجود ہوں۔ سٹی اسکول کے سامنے کا یہ حال ہے کہ یہ گزشتہ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہونے والا ہے۔ یہ سڑک جو ہے وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ ریگولر کی بنیاد پر اس سڑک سے سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں، ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، مگر خستہ حالی کے باعث یہاں سے جو ہچکولے کھاتی ہوئی گاڑیاں جاتی ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں، وہ شدید اذیت کا شکار ہے۔ میں اگر دکھاتی چلوں، میرے کیمرہ مین گلفام آپ کو دکھائیں کہ یہ روڈ کا حال ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اب یہ جس طرح یہ بڑی ٹریفک آ رہی ہے، ہچکولے کھاتی ہوئی جائے گی، ٹریفک جام رہے گی، ٹریفک کی روانگی متاثر ہو جاتی ہے۔ جو مسافر ہوتے ہیں، جن میں اکثر بزرگ افراد شامل ہوتے ہیں اور بیمار شامل ہوتے ہیں، انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتی ہوں اور جانتی ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے سال سے یہ روڈ ایسا ہے اور اس روڈ پر گاڑی چلانے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ تقریباً 2 سال ہو گئے روڈ ایسا ہی ہے۔ بارش کے دوران زیادہ ادھر پانی بھی ابلتے ہیں، گٹر بھی ابلتے ہیں، اور یہ پل کے نیچے بینچ وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے گاڑی ایکسیڈنٹ کا بھی زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کتنا نقصان ہوتا ہے آپ کی گاڑیوں کا اس طرح کے روڈ پہ گاڑی چلانے؟ جی اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ویسے بھی بہت زیادہ ان کے پارٹس وغیرہ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں، تو مہنگائی کا ویسے بھی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو گئے، اس لیے غریبوں کے لیے مشکلات اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جی تو میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ حادثات کا باعث بنتا ہے۔ جگہ جگہ گڑھے موجود ہیں، اکثر یہاں پر سیوریج کا نکارہ سسٹم ہونے کے باعث گٹر بھی ابل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے، نگراں حکومت کو چاہیے کہ جو سڑکیں خراب ہیں، خستہ حالی کا شکار ہیں، ان کی جلد از جلد کارپیٹنگ کی جائے، ان کی مرمت کی جائے، تاکہ سفری مشکلات سے شہریوں کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ جی جامعہ کراچی میں انجمن اساتذہ کا شام کی کلاسز کے بائیکاٹ کا دوسرا روز۔ کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ تنظیم انجمن اساتذہ نے جنرل باڈی کا اجلاس جمعرات کو طلب کر لیا ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے اساتذہ تنظیم نے کلاسز کا بائیکاٹ دوسرے روز بھی جاری رکھا۔ انجمن اساتذہ نے ایوننگ پروگرام کے معاوضوں کی عدم ادائیگی اور انتظامیہ کی جانب سے نامناسب جواب ملنے پر بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ جنرل سیکریٹری انجمن اساتذہ فیضان نقوی نے بتایا کہ یونیورسٹی کے اوپر اساتذہ کے واجبات ہیں، جن کی ادائیگی تک کلاسز کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ جناب والا بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے ایوننگ کے معاملے کے اوپر اسٹرائک کی ہے، کیونکہ ایوننگ کے تقریباً 1.5 سال سے واجبات جو ہیں وہ واجب الادا ہیں۔ کوئی 8-10 کروڑ سے اوپر کے ہیں جو ان کو دینے چاہیے، وہ ابھی تک نہیں دے پائے۔ انجمن اساتذہ کے سینئر نائب صدر سید غفران عالم نے بتایا کہ انجمن اساتذہ کا جنرل باڈی کا اجلاس پیر کے بجائے اب جمعرات کو منعقد ہوگا۔ ایوننگ کلاسز کے بائیکاٹ سے متعلق شیخ الجامعہ ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے بھی دینز کا اہم اجلاس ڈائریکٹوریٹ آفس میں طلب کر لیا، جس میں نائب صدر انجمن اساتذہ غفران عالم نے امید ظاہر کی کہ وائس چانسلر اساتذہ کے حق میں کوئی مثبت فیصلہ دیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈینز کی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے ایوننگ کے پروگرام کے حوالے سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کوئی حوصلہ بخش فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انجمن اساتذہ پیر سے پھر اپنے اگلے لائے سے ایوننگ کلاسز کا بائیکاٹ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا، جبکہ ایوننگ میں وزٹنگ فیکلٹی کی جانب سے کلاسز معمول کے مطابق منعقد ہوں گی۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ صوبائی حکومت وفاقی اداروں اور انتظامیہ کا ایکشن بیکار، شہر میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر پہنچ گئیں۔ فیڈرل پی ایریا میں 120 گز کے پلاٹ پر غیر قانونی پورشنز کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ ایس پی سی اے حکام نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت علاقے میں پورشنز مافیا اور مبینہ سرپرستوں کے خلاف بینرز اویزہ کر دیے ہیں۔ تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ عزیز آباد میں غیر قانونی تعمیرات سے علاقہ مکین پریشان۔ بلاک 8 سمیت بلاک 15 میں پورشن مافیا کے خلاف بینرز لگا دیے گئے۔ ایس بی سی اے کی مبینہ سرپرستی میں تعمیر ہونے والے پورشنز کی روک تھام میں ضلع وسطی کے ڈائریکٹر اور گلبرگ زون کے ڈپٹی ڈائریکٹر ناکام ہو گئے۔ عزیز آباد محلہ کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ پہلے 120 گز کے پلاٹ پر 3 منزلہ عمارت تعمیر ہو رہی تھی، اب 4 اور 5 منزلہ غیر قانونی عمارت بنائی جا رہی ہیں۔ ایس بی سی اے اور ڈپٹی
कमिश्नर के दफ्तर में दरख्वास्तों का कोई असर नहीं होता। हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है, इसमें मोहल्ला कमेटी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बट नथिंग रिस्पॉन्स हमारी तरफ से, कुछ भी मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सका, क्योंकि वो बिल्डर्स हैं एंड दे हैव रियली मतलब वहाँ उनकी अपनी रिसोर्स है जिसकी वजह से कोई कुछ कर नहीं पाता है और वो अपने सारे काम कर लेते हैं। भाई अब तो 5वीं बन रही है, यहाँ तो गली के अंदर 5वीं बन गई है। हम लोगों ने तो उसके लिए भी एहतजाज किया, KBC को भी नोटिस भेजा हुआ है, कितने लोगों को नोटिस भेजा, बल्कि उसके रिमाइंडर भी कराए हुए 3-3 दफ़ा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। पोर्शन माफिया के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स भी मैदान में आ गए। वाइस चेयरमैन आबाद नदीम यूसुफ जीवा का कहना था कि हम पोर्शंस को कभी सपोर्ट नहीं करते, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि ना वो पेपर में आता है, ना वो FBR में आता है, किसी चीज़ में वो आता ही नहीं है, और वो बना के आगे निकल जाता है, ना उस पर कोई नक्शे पे साइन होता है, वो अपना बनाता है और आगे काम चल जाता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे कराची में पोर्शन का काम हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। SBCA के डिप्टी डायरेक्टर शहजाद खोकर का दावा है कि वो सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि गुलबर्ग, लियाकताबाद समेत नाज़माबाद जोन में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर नजर आ रही हैं। जुनेद जावेद, City 21 न्यूज़, कराची। शहरी घाट के अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त सेहत खाना खिलाने वालों की शामत। फूड अथॉरिटी का तेज रफ्तार एक्शन, मुख्तलिफ अस्पतालों की कैंटीन्स के अचानक दौरे कर लिए। जिला अस्पताल की कैंटीन पर गैर मयारी खाना, जहाँ अस्पताल की कैंटीन के खाने को छापा मार टीम ने मयारी करार दे दिया। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। की कैंटीन्स फूड अथॉरिटी के रडार पर आ गईं। अस्पताल की कैंटीन्स चलाने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। फूड अथॉरिटी के वजीर आला सिंध के अहकामात पर मुख्तलिफ अस्पतालों की कैंटीन्स पर छापे। डाव ओझा कैंपस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट यासीन सबुजई का कहना था कि डाव अस्पताल की कैंटीन्स का माहौल अच्छा है। इंस्पेक्शन के दौरान कोई मुजर सेहत खाना या कोई और चीज रिपोर्ट नहीं हुई। हमने इनको इंस्पेक्शन की है, इनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखिए, इनकी सूरत हाल माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल, और लाइसेंस के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और हम इनको अपना SOPs भी जो सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs हैं उनसे इनको आगाही हमने दी है, और अगली मरतबा हम दोबारा विज़िट करेंगे। अगर कोई भी कमी पेशी इधर निकली तो जाहिर है हम फाइन करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद कहना था कि डाव अस्पताल का दोबारा भी दौरा करेंगे और दोबारा से जांच ली जाएगी कैंटीन्स की। अगर कोई मुजर सेहत चीज नजर आई तो फौरन जुर्माना किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आला सिंध ने जिना अस्पताल की कैंटीन्स का दौरा किया था। अस्पताल के किचन में गैर मयारी खाना मरीजों को खिलाए जाने के मामले पर वजीर आला सिंध की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत ने 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कैमरामैन सज्जाद के साथ राबेल अशरफ, City 21। कराची में बढ़ती महंगाई से परिंदों की खुराक भी महंगी होने लगी। 2,500 रुपये में मिलने वाली परिंदों की खुराक की फी बोरी 7,000 रुपये की हो गई है। यही वजह है कि परिंदों का दाना महंगा हुआ तो लोगों ने इसकी खरीदारी भी कम कर दी है। इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में परिंदों की खुराक के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। परिंदों के दाने की 2,500 रुपये में मिलने वाली बोरी 7,500 रुपये की हो गई। कीमतें बढ़ने से परिंदों की खुराक फरोख्त करने वाले अफराद भी परेशान हो गए। कहते हैं दाना इतना महंगा हो गया, लोगों ने खरीदारी भी कम कर दी। पहले तो अच्छा खासा लोग आते थे, अभी तो कोई बस जैसा कोई इक्का दुक्का आ गया, नहीं तो हम लोग जो है ना खाली चले जाते हैं। अभी महंगाई इतने है कि वो अपने बच्चों का पेट पाले या इन बेजुबानों को खिलावें। दूसरी जानिब परिंदों को दाना डालने वाले अफराद का कहना था कि अल्लाह की रजा के लिए परिंदों को दाना डालने आते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के बाइस अब इन परिंदों को दाना डालना और पालना मुश्किल होता जा रहा है। यही भी होगी है बेटा, क्या करी जा, हम खाना है तो जानवर भी खाना है, जानवरों को खाना देना है जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है। मुश्किल सौखा अब उन्होंने भी तो देना है ना, उन्होंने भी तो खाना है, अल्लाह ताला उन्होंने भी तो पैदा किया है ना। परिंदे पालना एक कदीम मशगला है और बाज़ अफराद ने इसे कमाई का जरिया बना रखा है, लेकिन अगर कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो इनको कारोबार करना भी नामुमकिन हो जाएगा। जहां महंगाई ने आम आवाम को परेशान कर रखा है, वहीं ये परिंदे भी महंगाई की जद में आ गए हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा आयमा खान, City 21। बुरी खबरों के बाद आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि डॉलर को लगने वाले रिवर्स केयर से दालों की कीमतों में कमी वाक़या हो गई है। होलसेल में दालें 20 रुपये से लेकर 60 रुपये तक सस्ती हो गई हैं। तफसीलात देखेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
हुकूमत ने मुनाफा खोरों के खिलाफ डंडा उठाया तो अशिया ज़रूरिया की कीमतें नीचे आने लगीं। ग़िज़ाई अजनास की होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में दालें सस्ती हो गईं। मसूर की दाल 55 रुपए कमी से 290 रुपए, चने की दाल 20 रुपए कमी से 215 रुपए, दाल माश 60 रुपए कमी से 460 रुपए किलो पर आ गई। ताहम मूंग की दाल 245 रुपए पर ही मुस्तहकम है। बात कुछ भी नहीं, अच्छी बात है, कम हो गया है, डॉलर कम हो गया है, बुकिंग कम हो गई है, लेकिन यह उल्टा हिसाब है पाकिस्तान का। जो चीज़ महंगी होती है ना, आवाम वो ज़्यादा ले रही है, जो कम हो जाती है ना, आवाम पूछती भी नहीं है। अभी 100 रुपये किलो और महंगी कर देंगे ना, अभी आवाम ले जाएगी। अभी बेनिफिट ये देखो, हर चीज़ कम हो गई, दालें 55 रुपये किलो मसूर कम हो गई, 20 रुपये किलो दाल चना कम हो गई, माश कम हो गई 60 रुपये किलो, लेकिन अभी सन्नाटा हो गया मार्केट में, कोई लेने वाला नहीं है। मेहनत कश तबके का कहना था कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है, दालें खरीदना भी मुहाल हो चुका है। दालों की कीमतों में सस्ती नहीं हो रहा है कि जैसा बंदों को गुमराह कर रहा है कि सस्ता हो रहा है, कोई सस्ता नहीं हो रहा है और दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है। बढ़ती महंगाई के बाइस लोगों के लिए राशन खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन दालें और चीनी की कीमतों में कमी से शहरियों को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इजाफी बिलों से आम सार्फिन के साथ साथ कमर्शल सार्फिन भी मुतासर होने लगे। दर्जी कहते हैं कि कमर तोड़ महंगाई से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है। अब इजाफी बिलों का बोझ बर्दाश्त से बाहर है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और इसके साथ ही के इलेक्ट्रिक के जानिब से इजाफी टैक्स और बिलों का बोझ, जिसके साथ हर आम सार्फिन के साथ साथ कारोबारी हजरात जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते दिखाई देते हैं। इस वक्त दर्जी के हमरा मौजूद हैं और इनका कारोबार भी खासा मुतासर है, न सिर्फ महंगाई बल्कि बिजली के इजाफी बिलों के बाइस भी, और यकीनी तौर पर महंगाई के बाइस काम भी जो है कम हो चुका है। बताइएगा क्या फ़र्क पड़ा है बिजली के इजाफी बिलों के साथ और इसके अलावा महंगाई में कारोबार में कितना फ़र्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि वाकई बिजली के बिलों ने तो कमर तोड़ के रख दी है। हालांकि ये डिफेंस में हमारी दुकान है और डिफेंस में हालांकि लाइट नहीं जाती, ये इनकी तरफ से हमें सहूलत है। लेकिन बिल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, हमारा ये बिल आया है, ये 28,000 रुपये का बिल आया है, जबकि मेरे पास और इससे पिछले महीने का 24,000 रुपये का बिल आया हुआ ये रहा। वैसे रेगुलर जो बिल नॉर्मली तौर पे आते थे 12,000 13,000 तो वो हमें समझ में आता था, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी LED लगी हुई है, LEDs लगी हुई है। इसके अलावा मशीनों में अगर आप देखेंगे मोटरें जो लगी हुई हैं वो 12 वोल्ट वाली हमने मोटरें लगाई हुई हैं, ज़्यादा पावर खींचती भी नहीं है। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि इलेक्ट्रिक को चाहिए कि वो इजाफी इसके अंदर जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो ना लगाएं, क्योंकि इससे हर एक आम इंसान भी और ख़ास इंसान भी सारे इससे मुतासिर हो रहे हैं मुसलसल। अब इसके अंदर अगर वो लिखते हैं पीछे बैक साइड पे आप देखें तो हर चीज़ का उन्होंने टैक्स लिखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर LED मतलब TV नहीं है, लेकिन उसका टैक्स भी है, और दीगर तमाम चीज़ वर्दी तक का उन्होंने टैक्स इसमें डाला हुआ है। यानी कि जो सार्फिन जो उनके एम्प्लॉयर है और वो भी अपनी जो वर्दी पहन के आते हैं उस तक की वर्दी के पैसे इसके अंदर लगाए हुए हैं। अब इसके यकीनी तौर पर महंगाई के बायस काम का रुझान भी कम हो चुका है और इसके साथ साथ बिल के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी बिलों का बोझ और काम में कमी, और जैसे कि उन्होंने बताया कि वर्कर्स भी कम कर दिए गए हैं। यकीनी तौर पर रोज़गार पर भी जो है खासा गहरा असर पड़ रहा है और इनका ये मुतालबा है हुकूमत से, आला हुकाम से, कि जल्द अज जल्द इस पर नज़रसानी की जाए ताकि पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ बाकी हालात को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके। जी, ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने वाइट ऑयल पाइपलाइन में कोटा 65% करने के लिए हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। सदर एसोसिएशन ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी पर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। कावश मेमन की रिपोर्ट देखिए। टैंकर्स मालकान एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए, हुकूमत के सामने अहम मुतालबात रख दिए। 3 दिन में अमल दरामद करने का मुतालबा भी कर दिया। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिदुल्ला अफरीदी ने हड़ताल की धमकी दे दी। बोले कि PSO ने हमारी 750 गाड़ियां बंद कर दी हैं और वापस करने से भी इनकार कर दिया है। इतनी महंगाई 10 साल में नहीं हुई जितनी 1 साल में हो गई। पुराना गाड़ी इन लोगों ने हम लोगों का बंद किया, कम अज कम PSO ने 750 गाड़ी हम लोगों का बंद कर दिया और वो दोबारा इजाज़त नहीं दे रहे। लोकल का 100% हम लोग मानते हैं, लॉन्ग रोड का 50% मांगता है, वो भी हम लोग के साथ अग्री नहीं होते, न मिनिस्ट्री और न उगरा। इतना महंगाई ये 10-12 साल पे नहीं हुआ जितना महंगाई ये 1 साल पे हुआ है। यही 3-4 पॉइंट हम लोग का है। अगर हम लोग का ये मसला हल नहीं हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से हम लोग का पूरी पाकिस्तान में हड़ताल होगा।
ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर सुलेमान तरीन ने भी हड़ताल की धमकी दी। कहा कि व्हाइट पाइपलाइन के कोटे में इजाफा, पुरानी गाड़ियों की बहाली और किरायों में इजाफा न किया गया तो फैसला कुन हड़ताल पर जाएंगे। व्हाइट ऑयल पाइपलाइन में ऑयल टैंकर का कोटा, पुरानी गाड़ियों की बहाली और फ्रेट में इजाफा, किरायों में इजाफा, इसके लिए हम पिछले 3-4-5 साल से मुसलसल अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुतालबात हल नहीं हो सके। ये हमारी तरफ से आखिरी एक मौका है हुकूमत वक्त को कि भाई हमारे साथ संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करें और हमारे इन तीनों मुतालबों के ऊपर गौर करें। अगर हमारे ये मुतालबे हल नहीं होते हैं तो हम एहतिजाजन पीर से काम ना करने की पोजीशन पर चले जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो दमादम मस्त कलंदर होगा, गाड़ियां खड़ी कर देंगे। पुराना गाड़ी को ऑटोमेशन में डालो या वापस नए गाड़ियों को, नया न्यू विजन गाड़ियों को पराठी पे ले आओ। फर्स्ट कम फर्स्ट गो पे बेसिस पे हमारा ये मुतालबा हल करो। हमारा पुराना गाड़ी बाल करे, अगर नहीं है हम न रोड बंद करेगा न और कुछ करेगा, हम अपना गाड़ी अपना घर में खड़ा करेगा। जब तक हमारी 4 मुतालिबात तस्लीम नहीं होगा, इंशाल्लाह कल परसों से हम लोगों का दमादमस कलंदर होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि हुकूमत ने ताहाल किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21।